Good morning. Welcome to this Sunday's Rotary Urja session based on asanas and pranayam conducted by Rotarian Neeru Goyal and brought to you by Rotary District 3131, especially Rotary Club of Pune Downtown, Rotary Club of Pune Riverside and Rotary Club of Pune Deccan Gymkhana. Before we begin our session, let me just give you a little brief about Rotary. So Rotary is a organization which is 116 years old and spread across 220 countries. The fact that Rotary is in existence for 116 years speaks about its greatness, and also the spread that is there of 220 countries also speaks about its even more greatness. Why I say? Because we are really proud Rotarians, and we don't say that without a reason. We're proud because, as I said, it has a legacy of 116 years. In the era which is so dynamic and so changing and so competitive, the companies are finding it difficult to sustain. Take an example of Nokia. Every one of us had a Nokia in our hands just 5 years back, 6 years back. Today, Nokia is struggling to get a market share. In such a scenario, if you really look at Rotary's existence for 116 years, it talks volumes, and I don't need to say much more about its greatness. In the world, there are 36,000 clubs and 540 districts of Rotary International. The office is based in Evanston, Chicago, United States of America. As far as District 3131 is concerned, we cover the geographical area of revenue districts of Pune and Raigad, and that is what comprises of Rotary District 3131. We also would credit ourselves with eradication of polio from the face of this earth, and Rotary's mission has always been to see the entire world free of polio. Now there are only two countries which has polio, and we've not stopped our work. So every dollar that you would donate to Rotary for polio eradication, Bill and Melinda Gates Foundation donates $2 more, or it matches $2 to your $1 of donation, and together with UNICEF and WHO, we plan to ensure that the entire world is free of polio in coming 2 or 3 years max. So we are really proud about these achievements of Rotary. Another reason for being proud is the charitable arm of Rotary International, which is the Rotary Foundation, has received the highest rating, which is a 4-star rating given by Charity Navigator, um, which is an agency that that analyzes the NGOs across the world. This is kind of a credit rating agency, and 4-star rating is the highest rating that any organization can get. And the Rotary Foundation has been getting this 4-star rating for the last 12 years consecutively. Another reason for us to be really, really proud about being a Rotarian. With this, I will like to introduce you to your trainer for the day, which is Rotarian Neeru Goyal. Neeru Goyal is an industrialist and is a versatile personality. She is an artist. She has almost 50 oil paintings to her credit. And when I say she's an industrialist, she has managed to run her father's business for almost 27 years, and Kaizen, Kanban, 5S, all these are her expertise, and she has implemented these things at her industry. In addition to that, she is a passionate person about pranam, and she would love that each one of you follow the techniques that she's going to teach you today of simple asanas and pranayam. So over to you, Neeru, for the session. Thank you and enjoy the session. अपना सेशन ओमकार के साथ अपने गुरु स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए ओ
खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार करने के लिए। मैंने जो भी चीज़ें हम बोलते हैं उसमें एक बात ज़रूर अनाउंसमेंट हर बार होता है कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो ध्यान से करेंगी, वो सूर्य नमस्कार भी नहीं करेंगे। तो वो खास ध्यान रखना है आप लोगों ने। सूर्य नमस्कार बहुत सारे 21 स्टेप का भी होता है, 16 स्टेप का भी होता है, 18 का भी होता है। यहाँ हम 12 स्टेप की बात करते हैं। तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। 1 2 एक्सेल 3 4 5 6 7 8 9, जो लेग पीछे लेकर गए थे वही आगे लानी है। 9 10 11 12। इसमें आप नोटिस करेंगे कि अपने आप से अपने आप जिस एक्सरसाइजेस में हम आसन के ये जो 12 आसन है जिसमें इस तरह से हम करते हैं वहाँ सांस गहरी लेनी चाहिए, ऑटोमेटिक आती है। और जहाँ पर हम नीचे झुकते हैं वहाँ पर एक्सेल करना चाहिए। लेकिन 6 नंबर पे ना आपको एक्सेल करना है ना इनहेल करना है। तो अभी मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सूर्य नमस्कार आप 5 बार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे दोनों नस्ल को खोल देता है और हमारे को प्राणायाम करने के लिए तैयार कर देता है। तो अब हम पहला प्राणायाम लेंगे। पहले प्राणायाम से कुछ ज़रूरी बातें मैं बता देती हूँ। बैठने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, सीक्वेंस में हम बता रहे हैं। 5 सीक्वेंस है हमारे प्राणायाम के। जो आज है ये दूसरा सेशन है और इस दूसरे सेशन में हम आपको प्राणायाम, वात, पित्त और कफ और कुछ चीज़ों इंटरनल चीज़ों के बारे में बताएंगे। हीलिंग किस तरह से आप अपने बॉडी की इंटरनल हीलिंग करते हैं वो बताएंगे। जो बेसिक सेशन था वो इससे पहला सेशन था जिसमें हमने बताया था कि मुद्रा कैसे लगानी है, बैठना कैसे है। लेकिन आज के दिन मैं आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि समय कम होता है हमारे पास। अभी आप ध्यान मुद्रा लगाइए। और पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम गहरी सांसें लेते हैं और गहरी छोड़ते हैं। ये रक्त शुद्धि का प्राणायाम है। आपको एक रबर मैट पे बैठ के करना है, प्लेन ज़मीन पे बैठ के कहीं पर भी ये प्राणायाम नहीं करना है क्योंकि जो ताकत, जो ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिफिकेशन आपकी बॉडी का होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है, वो नीचे अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर ही रहनी चाहिए। सो अभी इस तरह से ध्यान मुद्रा लगा के गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांसें यानी कि 2.5-3 सेकंड लंबी लेनी है और 2.5-3 सेकंड लंबी छोड़नी है। कोई माथे पे टेंशन नहीं, हल्की सी हंसी, रिलैक्स होके आपको ये सांसें लेनी है। पूरा ध्यान सांसों की तरफ, सांस अपने अंदर कैसे जा रही है, ठंडी सांस जा रही है, गर्म बाहर आ रही है। आपको गहरी सांस लेनी है पर रुकना कहीं नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जब आप लेते हैं तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और आपके अंदर जो लेते रहिए। आप जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं गहरी से गहरी सांस लीजिए पर टेंशन ज़रा भी नहीं, फेस बिगड़ने नहीं देना है, गहरी सांस लेनी है और मैं जो बोलूँगी उसको ठीक से सुनना है। बाकी लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत ध्यान से अपने मेडिटेटिव मूड में यानी कि सांसों पे ध्यान देते हुए कंटिन्यू करेंगे। हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में 8 करोड़ सेल्स हैं। सेल्स आर सपोज टू बी अवर
ऊर्जा, वही हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। ये सब कुछ हम उसी एनर्जी से करते हैं और इसी एनर्जी को पूरे के पूरे ऋग्वेद से आज तक इसी एनर्जी को भगवान कहा गया है, क्योंकि यही सुप्रीम ताकत है जो हमारे अंदर भी है और ब्रह्मांड के अंदर भी है। हमें ब्रह्मांड में फैली हुई बड़ी ताकत को, एज इफ वी आर इनवाइटिंग दिस पावर, दिस एनर्जी, ये सोर्स को हम अपने अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं अपनी वेलनेस के लिए। गहरी सांस लीजिए, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें 25% ही सेल काम करते हैं, बाकी सब डॉर्मेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लॉस होता है और जो एनर्जेटिक फीलिंग हमें होनी चाहिए वो हमको नहीं होती है लाइफ में। इसलिए हमको हर सेल को जगाने की तरफ काम करना है और गहरी सांस लेनी है। चेस्ट को एक्सपैंड करके 5 मिनट तक हम गहरी सांस लेंगे। थक जाए तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, वरना लेते रहिए, भस्त्रिका करते रहिए। गहरी सांस लेनी है, माथे पर कोई टेंशन नहीं है, चेहरे पे और मन में थोड़ी सी हंसी रहनी चाहिए। रिलैक्स होकर ये गहरी सांसों को एंजॉय करिए और लगातार लीजिए, कहीं रुकना नहीं है, कहीं गैप नहीं देना, कहीं बंद नहीं लगाना। ये प्राणायाम जैसा कि मैंने बताया रक्त शुद्धि का प्राणायाम है। इससे हमारे ब्लड में रेड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगते हैं जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और वो रेड सेल की वजह से हमारे खून में एक जोश भी बढ़ जाता है, जो जिससे कि हमारे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है, लेकिन बाद में वो ठीक भी इसी से होता है। सो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो धीरे भले ही करें, लेकिन ये विश्वास रखें कि आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है, जो कि आपको पूरे मन लगा के करना है। प्रेग्नेंट लेडीज भी इसको पूरी तरह से फुल फोर्स से कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए छोड़ देंगे, अभी हम तितली आसन करेंगे। ये आसन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन है हमारा। ये जो स्ट्रक्चर्ड 1 आवर है, इसमें हमने प्राणायाम योगा जो है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्राणायाम, आसन और ध्यान, और ये तीनों की तरफ हमको लेकर जाना है। आपको हमारा 5वां जो साइकिल होता है उसमें हम पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर ये करते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर का सीक्वेंस है, जिसमें मैं आपको और जो प्राणायाम से संबंधित जानकारी है वो देती चलूँगी। अभी आप तितली आसन कर रहे हैं, ये आपकी कैल्सिफिकेशन ऑफ दिस जॉइंट इसको खोल देता है। अगर आप ये इस तरह का आसन नहीं करते तो हम यहाँ जो भी बीच में एक स्मॉल एक्सरसाइजेज, जो शॉर्ट एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बॉडी का हर जॉइंट कैल्सिफिकेशन फ्री हो जाए, कैल्शियम फ्री हो जाए, क्योंकि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है वो डिफरेंट जॉइंट्स पे जम जाता है, जिसकी वजह से उम्र के साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती चली जाती है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमको घेर लेती हैं।
तो ये समझते हुए हम यहाँ तक एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप इसके साथ साथ ऐसा भी कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा शौकीन हैं और कर सकते हैं तो वो अपने पैरों पे बैठ भी सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से आप बैठ सकते हैं। और ये इस तरह से बैठना थोड़ा पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपके जॉइंट्स खुल जाएंगे, आप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अभी फिर से बैठ जाएंगे। अब मैं अपनी कम से कम पद्मासन लगा रही हूँ, जो लोग पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं तो हम भस्त्रिका के बाद दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, दूसरा प्राणायाम करेंगे जिसको बोलते हैं कपालभाति। 5 सीक्वेंस में ऑलमोस्ट आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सीक्वेंस को याद करने की कोशिश करिए। उससे आपका प्राणायाम सेशन आपके दिमाग में चला जाएगा, इसका सीक्वेंस चला जाएगा और आप कहीं भी बैठकर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं और आपको ये खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। जब तक हमें किसी किताब की या पेपर की या वीडियो की ज़रूरत होती है, तब तक हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। आई डोंट वांट यू पीपल टू बी डिपेंडेंट ऑन मी। और ये सेशन के लिए आपको खुद याद होना चाहिए। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको यहाँ पर ऐसे महसूस करना है कि कोई मक्खी या मच्छर बैठा है और उसको आप उड़ा रहे हैं। आपके हाथ मुद्रा में है और आप सिर्फ अपनी सांसों से उड़ा सकते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? सांस आपकी खुद ब खुद आएगी। आप करते रहिए, मैं बीच में सिर्फ आपको बताऊंगी कि इसके फायदे क्या हैं। आप लोग लगातार करते रहिए और अगर थक जाएं तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कपालभाति रॉयल प्राणायाम है। रॉयल प्राणायाम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर बीमारी के लिए एक ऐसा प्राणायाम है जो कि क्योर करता है और इस बीमारी से बड़े क्रॉनिक रोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बेसिक बात यह है कि हमारा ये जो प्राणायाम है, ये नए सेल्स में एक ताकत, ऊर्जा बनता है। नए सेल्स जो बनते हैं वो पूरे के पूरे हेल्दी सेल्स होते हैं हमारे, और उन हेल्दी सेल्स की वजह से जो भी हमारे शरीर की संरचना है उसको एक नई पावर मिलती है, और वो नई पावर ऐसी होती है जिसमें बीमारियां पनपती नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखकर आपकी खांसी, जुकाम, नज़ला, ये छोटी छोटी बीमारियां तो ऐसे ज़िंदगी से बाहर हो जाएंगी जैसे हमें पता ही नहीं है। हम रोज़ 1 घंटा इस प्राणायाम, इस सीक्वेंस को देने के बाद मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपकी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपके मूड में बड़ा चेंज आएगा। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भर ही गया है। तो कपालभाति बहुत बड़ा आसन है, बहुत बड़ा प्राणायाम है जो कि बहुत फायदेमंद है। करिए, ये 15 मिनट तक किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसकी स्पैन बढ़ाएंगे। तो आप वीडियो रोक के उसको 5 मिनट के बदले 10 मिनट भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इस लाइव सेशन में मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम दे पाती हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। लेकिन और उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं जिसकी वजह से टाइम बहुत पास हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले बैठेंगे तो सिर्फ प्राणायाम करेंगे तो आपका 50 मिनट्स में सारा का सारा प्राणायाम बहुत अच्छे से हो जाएगा।
करेंगे। 5 मिनट पूरे हुए, लेकिन ये 10 मिनट करना ही चाहिए हर दिन आप लोगों को। अभी हम लेग एक्सरसाइज करेंगे। लेग्स में भी हमारे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जिसका कि हमें केयर करना चाहिए, जिसको कि खोलना चाहिए रोज रोज। तो ये थोड़ा एडजस्ट कर। तो पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। जो नए लोग आए हैं वो पूरे सीधे ऐसे पैर करके बैठ जाइए और एक्सरसाइज शुरू करिए। 1 2 3 4 4 फुली करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 रोल करिए आप। 2 3 4 5 रिवर्स। अपने जो जॉइंट हैं उनको ध्यान में लाइए कि हम इनको खोल रहे हैं, उससे डबल असर होता है। माइंड एंड बॉडी का असर क्रिएट करना है। अभी हमको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें घुटने को उठाना नहीं है, लेकिन जहाँ है वहां से नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी हम टोज एक्सरसाइज करेंगे। टोज में भी हमारी उंगलियां जो हैं वो पावरफुल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो, वहाँ तक जितने सिक्रीशन हमारे बॉडी में हेल्दी सिक्रीशन है वो अपने पूरे पूरे में जाए। तो उसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक्सरसाइज आप कितनी भी बार कर सकते हैं, 20 बार 10 बार, जितनी बार भी आप करना चाहें, जितना आपको टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ही कराते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो अभी फिर से बैठ जाएंगे हम। अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम जो है हम एक आसन कर रहे हैं, यानी कि एक फिजिकल क्रिया कर रहे हैं और एक प्राणायाम कर रहे हैं। तो अभी बाह्य प्राणायाम में आप जो नए शामिल हुए हैं वो पहले देखिए, बाकी लोग मेरे साथ करेंगे। गहरी सांस छोड़िए और अब तीनों बंद लगा लीजिए। थोड़ी को गर्दन के एंड पे लगाना है, नाभि से पेट को एकदम खींच लेना है और मूल बंद लगाना है। मूल बंद होता है रेक्टम को खींचना, एनस को खींचना। तो अपना नीचे का पूरा हिस्सा ऊपर आ जाइए। अभी फिर से करेंगे। गहरी सांस छोड़िए, फिर से बंद। बंद लगा के बैठना है अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड। फिर सीधे हो जाइए। फिर से गहरी सांस छोड़िए। नाक से पानी आता है, कोई बात नहीं, टिश्यू अपने साथ रखिए। अब सीधे हो जाइए। ये हमारा बाह्य प्राणायाम हुआ। बाह्य प्राणायाम के बाद हम अग्निसार करेंगे। बाह्य प्राणायाम का ही एक हिस्सा है अग्निसार। तो देखिए, गहरी सांस छोड़िए और अब पेट को आगे पीछे, तीनों बंद लगाएंगे पर पेट को आगे पीछे करेंगे फुल फोर्स के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। अभी फिर सीधे हो जाएंगे। गहरी सांस छोड़िए। पेट को आगे पीछे करना है। सीधे हो जाइए। नाक से जो पानी आता है आने दीजिए, पर सांस को पूरी तरह से बाहर फेंकना है। गहरी सांस छोड़िए।
फिर से पेट को आगे पीछे, इस तरह से हमने बाह्य प्राणायाम और अग्नि साफ। हाथ को इस तरह से रख लीजिए सीधा। अभी नकल्स को भी मिला लीजिए, सीधा रहेगा, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। नकल्स को मिलाइए और अब रोल करिए। 1 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। अब हाथ कंधे पे रख लीजिए और इस तरह से कोहनी से राउंड शून्य बनाना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। अभी हमको ये हाथ इस तरह से पकड़ लेना है, इस तरह से रिस्ट अपनी पकड़ लेनी है और पीछे लेके जानी है, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। गहरी सांस लीजिए और सिर्फ हाथ खींच लीजिए, जितना खींच सकते हैं एक तरफ। गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं करना, झुकना नहीं है, कमर से नहीं झुकना है, सीधे बैठना है, सिर्फ हाथ को खींचना है। फिर सेंटर, अभी गहरी सांस, फिर दूसरी तरफ बैठ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर, गहरी सांस, फिर से खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर, फिर से गहरी सांस, सेंटर। अभी हाथ को घुटनों पे रख लीजिए और कंधों के एक्सरसाइज। 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। अब हम चक्की, ये 5वीं एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग फैला लेंगे और 1 2, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। फिर से बैठ जाएंगे। अब हमारा नंबर है चौथे प्राणायाम का। चौथा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसमें हम ये 2 उंगलियां और अंगूठा यूज करेंगे। एक हाथ मुद्रा में रहेगा, एक नॉस्ट्रिल को हल्का सा दबाएंगे, गहरी सांस लेंगे और फिर दूसरा नॉस्ट्रिल जो खुला हुआ था उसको बंद कर लेंगे और सांस को बाहर डालेंगे। यहीं से हम गहरी सांस ले लेंगे। फिर इधर वाला बंद कर लेंगे और ऑपोजिट साइड से सांस बाहर निकालेंगे। ऑपोजिट साइड से सांस छोड़ेंगे। आप हल्की हल्की मेरी आवाज सुन रहे होंगे, पर टेंशन कोई नहीं लेनी है। आराम से गहरी सांस लेनी है। पर्पस है गहरी सांस लेना।
करते रहिए करते रहिए। मैं इस प्राणायाम के बारे में थोड़ा कुछ बड़ा बताऊंगी, आप लोग करते रहिए और सुनते रहिए। ये प्राणायाम एक बहुत अहम प्राणायाम है जो कि हमारे अंदर की सारी पाइपलाइन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। ये एक प्राणायाम बड़े से बड़े रोगों में, कपालभाति और ये वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं, इसको बहुत बार, मतलब सुबह, फिर 2 घंटे बाद, यानी क्रॉनिक अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए हम ये दोनों प्राणायाम का कॉम्बिनेशन कराते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वेलनेस का सेशन है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप इसको 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट तक बड़े आराम से कर सकते हैं। सिर्फ हाइपरटेंशन वाले लोगों को थोड़ा धीरे करना है प्राणायाम, और फोर्सफुली नहीं करना, लेकिन अपने आप आपके शरीर में एक ताकत आती जाएगी और आप आराम से इसको 15 मिनट कर पाएंगे। आपके ऊपर है, आपको कितना टाइम है, उस हिसाब से आप अपने इस घंटे में हर प्राणायाम का हिस्सा रख सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम है ये बहुत कारगर प्राणायाम है और बहुत इफेक्टिव है। इससे हार्ट के जो ब्लॉकेट्स हैं वो भी 6 महीने में अगर इलाज के तरीके से इसको कराया जाए पेशेंट को तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। लाइक अब छोड़ दीजिए, अब हम करेंगे नेक एक्सरसाइज। नेक एक्सरसाइज आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम फ़ोन पे हर समय ऐसे रहते हैं, हमारी ये वाली पूरी की पूरे हिस्सा ये डिफेक्टिव होता जाता है और इसको हम ठीक रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये एक्सरसाइज 2-3 बार कर लें। अगर आप कंप्यूटर और फ़ोन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हाथ रखिए माथे पर, पूरा इस तरह से गहरी सांस लीजिए और पुश करिए, हाथ से माथा, माथे से हाथ। अब आप सर के ऊपर बिल्कुल सेंटर में करिए, टेल बोन तक बिल्कुल एक सीध में रहना चाहिए। गहरी सांस, पुश पुश विथ फुल फोर्स। अब बैक में हाथ रखिए, कान के दोनों कान के बिल्कुल सीध में। गहरी सांस, पुश। अभी थोड़ी पर हाथ रखिए, गहरी सांस, पुश। अभी टेम्पल पर हाथ रखना है, कान और आंख के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर अपनी हथेली रख लीजिए। गहरी सांस, पुश। सांस आपके अंदर है, छोड़ दीजिए। अदर साइड, गहरी सांस, पुश। अभी हम रोटेट करेंगे गर्दन को, डाउन, साइड, बैक, साइड एंड डाउन, रिवर्स। उसी साइकिल में ये हमारा पूरी नेक एक्सरसाइज हो गई। अभी हम एक प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है उज्जाई। उज्जाई में आपको थ्रोट को, अपने इंटरनल सिस्टम को एक एक्सरसाइज देनी है जिसमें हम मुंह बंद करके नाक से सांस लेते हैं, लेकिन गले को कॉन्ट्रैक्ट करके एक आवाज़ निकालते हैं। इसको आप कबूतर की आवाज़ समझ लीजिए या कोई भी आवाज़ समझ लीजिए, लेकिन ये आवाज़ निकालने से हमारे थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट की प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो जाती है, जो कि आजकल थ्रोट इन्फेक्शन से ही सारी बीमारियां, बच्चों की बीमारियां तो वही शुरू होती हैं। तो इसीलिए ये तो आप बच्चों को भी सिखाएंगे, ये एक्सरसाइज अपने साथ बैठाएंगे, करेंगे तो उनको स्कूल से जो इन्फेक्शन लगता है वो भी कभी नहीं लगेगा। तो करते हैं, गहरी सांस, और फिर तीनों बंद।
और अब आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से पूरी हवा निकाल दीजिए। फिर से दोबारा एक बार और राइट नॉस्ट्रिल बंद करके निकाल दीजिए। ये हमारा ऊंचाई प्राणायाम हुआ। आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 बार आप जब इस एक वीक के अंदर आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो लगा के और आप घर में 1 घंटा रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीक्वेंस याद खुद ब खुद हो जाता है। अभी ऊंचाई प्राणायाम के बाद हम 3 मेडिटेशनल प्राणायाम करेंगे जो कि एक साथ करते हैं। जो नए शामिल हुए हैं वो देख सकते हैं कि कैसे किया जा रहा है। अगली बार से कर लीजिएगा या कल से कर लीजिएगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ जाइए। हमको भ्रामरी प्राणायाम पहले करना है। जीभ को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अभी तीनों उंगली आँख के ऊपर ऐसे रखनी है। चौथी तर्जनी उंगली ऊपर आईब्रोज के रखनी है और कान की लीड से कान को पूरी तरह से बंद करके जिससे बाहर की कोई आवाज नहीं है और अंदर ही अंदर ओंकार के हमिंग करनी है। गहरी सांस लीजिए। अभी ओंकार करेंगे। तीन बार ओंकार करने के बाद बैठ जाइए शांति से। गहरी सांस लीजिए पर आवाज जरा भी नहीं। अब हाथ ऊपर करके रब करिए और इस पूरी गर्मी को, इस ऊर्जा को अपने ऊपर ही डाल दीजिए। ये आपका हीलिंग टच है। अपने लिए भगवान को शुक्राना करते हुए, ये नेचर को शुक्राना करते हुए, प्राण शक्ति को शुक्राना करते हुए आपका प्राणायाम सेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और थोड़े से एक ऐसे आसन करेंगे जो कि हमें डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा का पूरा हमें एक स्ट्रेंथ देते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये हाथ ऐसे रख के गहरी सांस लीजिए और
छोड़ते छोड़ते सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से छोड़ देना है, जब तक कि आपका चेस्ट आपकी नीज से लगता है तब तक डाउन करिए। फिर आईब्रोज के बीच में देखना शुरू कर दीजिए, सामने देखना है। आईज की भी एक्सरसाइज होती है इससे। और पेट में जो आपका प्रेशर पड़ रहा है उससे डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होती है। ऊपर आ जाइए सांस लेते लेते। दूसरा हाथ की पोजीशन चेंज करिए, गहरी सांस छोड़ते छोड़ते फिर नीचे जाइए। सामने देखना है, आईब्रोज के बिल्कुल सीधे, आईब्रोज के बीच में देखना है। ऊपर आ जाइए। अभी आपको तीसरा मंडूकासन इस तरह से करना है, अंगूठे की दूरी नापनी है और दोनों तरफ पैडिंग देनी है। फिर झुक जाना है। अपने आप एक प्रेशर जो आ रहा है उससे हमारी अंदर की पैनक्रियाज को पूरा का पूरा एक मसाज मिल रही है, एक एक्सरसाइज मिल रही है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग कर रही है। ऊपर आ जाइए। सांस लेते लेते अब हाथ को ऊपर कान से टच करते हुए रखना है। कान से टच करते करते ही नीचे जाना है और हिप से जाना है, हिप से नीचे झुकना है। कान के पास से हाथ बिल्कुल नहीं हटेंगे। कान पे टच करते करते पूरा झुक जाइए नीचे। अब आप ऊपर कान को टच करते करते ही ऊपर आना है। ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है लेकिन कॉन्शियस रहेंगे तो हो जाएगा। तो ये 4 जो मंडूकासन मैंने आपको बताए ये डायबिटीज में रामबाण की तरह काम करते हैं। आप प्लीज करिए, 5-5 बार करिए। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो सुबह शाम करिए। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी डायबिटीज की वजह से भी जो होती है उसमें भी फायदा मिलेगा। अभी हम ऐसे बैठ जाएंगे, सूर्य नमस्कार, ये हम सिंहासन करेंगे। इस तरह से हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और अपने आईब्रोज के बीच में देखना है, आंखों से बीच में देखना है, जीभ को बिल्कुल बाहर नीचे यहाँ थोड़ी तक टच करने की कोशिश करनी है और सिंह जैसी आवाज निकालनी है, गहरी सांस। थोड़ा गर्दन को फैला लेंगे। अब हम हास्यासन करेंगे। ये जो उंगलियां हैं इसके पोर्वों में यहाँ पर जो उठा हुआ है ये हमारा एक्यूप्रेशर की तरह काम करेगी। बहुत जोर जोर से ताली बजाएंगे और हंसेंगे। हंसेंगे इस तरह से कि पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाए और आपके शरीर में इतनी जगह बन जाए कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने आप आ जाए कश करते हुए। तो ओम 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 देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति रेति शांति, सामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। हमारा प्राणायाम सेशन खत्म हुआ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि वात पित्त और कफ क्या होता है और वात पित्त और कफ और प्राणायाम क्या होता है। मतलब एक्चुअल में प्राणायाम को हम किस फीलिंग के साथ करें। प्राणायाम क्या है, प्राण क्या है। यानी कि हम सोचते हैं कि प्राणायाम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं तो एक मैकेनिकल बात हो जाती है, उसमें कहीं पर भी कोई ब्लिसफुलनेस नहीं जुड़ती है, कोई ऐसे स्पिरिचुअलिज्म नहीं आता है। अगर हम प्राण को समझने लगे, प्राण शक्ति को समझने लगे। अब आप मान लीजिए आप कोई मशीन चला रहे हैं
वो मशीन है, बिजली भी है, टूल्स भी है, ऑयल भी पड़ा हुआ है, सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन जब तक आपकी ऊर्जा वहाँ नहीं लगती, या तो स्विच दबाने में या उसको चलाने में, वो जो ऊर्जा है वो तब तक नहीं लगती, तब तक वो मशीन काम नहीं करती। तो नेचर की कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ एक्टिवेट होती है तो एक प्राण शक्ति से होती है। वो प्राण शक्ति हमको चलाती है, फिराती है, आंखें झपकाती है, नींद, सोचने की ताकत देती है, रीजनिंग करने की ताकत देती है। तो हर चीज़ के पीछे एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर है, एक पावर है हमारे अंदर जिसको कि प्राण शक्ति कहा गया है। और हमारे वेद ग्रंथ यानी ऋग्वेद से ये कहना कहा गया है कि ये जो प्राण शक्ति है ये पूरे ब्रह्मांड में भी फैली है और हमारे शरीर के एक एक कोने कोने में ये ऊर्जा शक्ति है। और इसी एनर्जी को भगवान कहा है। अगर हम कहें कि कोना कोना, हर कोना एक एनर्जी से भरा हुआ है। और जब हम सुबह को प्राणायाम यहाँ करते हैं या जिस टाइम भी आप प्राणायाम करते हैं तो आप इस प्राण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को आने का न्योता देते हैं। और किस तरह से देते हैं? जैसे आप अपने सांसों को, आप चैरियट है और आप उस चैरियट में ये भगवान को बैठा के अपने अंदर ला रहे हैं, इस प्राण शक्ति को बैठा के आप अपने अंदर ला रहे हैं। इस भावना से, इस फीलिंग के साथ प्राणायाम करना चाहिए। और जब आप ऐसे करेंगे तो ब्लिसफुलनेस में ही रहेंगे हमेशा। लेकिन ये जो सुबह की आदत है ये आपके पूरे दिन की फीलिंग को बदल देगी। तो प्राण शक्ति को महसूस करना, कभी आपको बुखार हो जाता है तो आप कितना वीक करते हो, उस टाइम पर याद करिए कि मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति है और वो दिव्य शक्ति है मेरा भगवान, उसी को मैं भगवान कहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, ऋग्वेद में कोई मंदिर मस्जिद ये सब चीज़ों को नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे भगवान कण कण में है, ये मैन मेड है मंदिर, हम मूर्ति जो पूजा करते हैं ये सब हमारी अपनी बनाई हुई। लेकिन एक साइंटिफिक जो फोर्स है वही सब कुछ है, वही प्राण शक्ति कहलाती है। और उस प्राण शक्ति का ध्यान करना, याद करना, उसको जैसे ही हम याद करते हैं वो मल्टीप्लाई होने लगती है। और इसी को प्रेयर कहा गया है। हमारे यहाँ सूर्य भगवान से जो ताकत आती है उसको पूजा जाता था, वरुण की जो ताकत है उसको पूजा जाता था, हमारे सारे नेचुरल सोर्सेस जो थी, पानी की ताकत, इन सबको पूजा की जाती थी क्योंकि इसकी शक्ति को पहचाना जाता था। तो आज की तारीख में ये जो शक्ति आपके अंदर छिपी है इसको बढ़ाने का नाम ही प्राणायाम है। अब वात, पित्त और कफ क्या होता है? वात, पित्त और कफ ये आयुर्वेद की एक बेसिक एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा उनका अध्ययन और उसका ट्रीटमेंट बेस करता है। तो वात, पित्त और कफ हमारे शरीर के ज़रूरी एलिमेंट है, लेकिन वो कितनी मात्रा में रहने चाहिए और कहाँ कहाँ रहने चाहिए, इसमें इम्बैलेंस आ जाता है। हम कभी कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं या हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं रहती, हमारे को टेंशन्स बहुत रहती हैं, बहुत तरह से इम्बैलेंस आता है। तो उस इम्बैलेंस को, अब वात क्या है? वायु जो कि शरीर में विद्यमान है, लेकिन अगर ज़्यादा गैस प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं। तो वो कितनी रहे, वो इसी प्राणायाम से लागू होती है। यानी कि जितना गैस है फालतू की वो निकल जाती है और जितनी रहनी चाहिए वो रह जाती है। उसी तरह से हमारी एसिडिटी, ऐसे पित्त जिसको कहते हैं, वो पित्त भी, वो चलायमान भी नहीं है। वायु तो चलायमान है, तो उसको वो कहीं जम जाती है या रह जाती है शरीर में, तो उसको निकालने के लिए हमको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है जो कि एनीवे शरीर को नुकसान करती है। तो उससे बचना है तो हमको ये प्राणायाम करने से ही वो बैलेंस में आती है। और कफ तो अब पूरा जमने वाली चीज़ है और उसका कंट्रोल भी प्राणायाम, जब हम गहरी सांसें लेते हैं और एवरी डे वी डू दिस एक्सरसाइज, this pranayam, the body becomes so used to of a sanctity कि उसमें तो कुछ आता नहीं है। लेकिन एक दिन भी आप प्राणायाम छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो गया है। सो प्राणायाम ऐसा नहीं है कि एक दिन में, हम कोई अमृत पीकर नहीं आए हैं कि हम चलते रहेंगे, लेकिन टारगेट ये है
कि हमारी जो उम्र है, हम अगर 100 साल इसमें जीने की बात करते हैं, हर सांस ऊपर वाले के हाथ में है। हम कब तक जिंदा रहेंगे मालूम नहीं, लेकिन जब तक जिंदा रहे तब तक ऊर्जा से भरे रहें, अपना भी भला करें, दूसरे का भी भला करें, अच्छी भावनाओं से जिंदगी जिए, ब्लिसफुलनेस के साथ जिंदगी जिए। इसकी आदत हमें इसी एक घंटे में मिली है, इसलिए इसको कभी कर लिया कभी नहीं करा, या संडे के संडे ही किया, ऐसा नहीं करिए। आप रोज रोज करिए। रोज रोज करने से आपके अंदर जो एक मेंटल ऊर्जा जागी थी, उससे इतने नए नए आइडियाज आते हैं। जब मैं ऋग्वेद की कहानी पढ़ती हूँ तो कहा गया है कि वो देवताओं से के मुख से आने वाली वाणी है। वो देवताओं के मुख से कैसे आती थी? जब जब मानव शरीर यानी कि कोई योगी बहुत दिन तक तपस्या करता था, यानी कि ध्यान, तो वो ध्यान में उसके अंदर इतनी डिवाइन पावर्स पैदा हो जाती है कि वो जो कुछ मुंह से निकालता है वो एक मंत्र बन जाता है। ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे ऋग्वेद में जो मंत्र है, जो उच्चारण है, आप ये सोच सकते हैं मैंने 10 दिन की विपश्यना 15 बार की है, वैसे 10 दिन की 20 दिन की विपश्यना करके भी जब मैं आती हूँ तो मेरे अंदर इतने सारी चीजें उबल के आती हैं, इतनी सारी चीजें पैदा होती हैं जो ब्लिसफुलनेस की तरफ ले जाती है, जो अच्छी तरफ ले जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये ऋषि मुनि पूरे के पूरे ध्यान मग्न होकर 100 साल तक, सालों तक तपस्या करते थे, तो जब वो तपस्या से उठते थे तो उनके अंदर से कितनी सुंदर बातें और कितने सुंदर रूप में निकलती होंगी। तो वो पहले ऋग्वेद में शुरू में तो वो सुन सुन के ही लोग बाग अपने याद करते थे उन मंत्रों को, लेकिन उसके बाद उसका संकलन हुआ और ऋग्वेद के रूप में हमें मिला। तो इस तरह की बातें होने ही लगती हैं जब हम ध्यान मग्न होते हैं। तो अभी आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आपके अंदर बहुत सारा हीलिंग टच आ जाए, अपने आप की अपनी समस्याओं को खुद ही आप जान लो, पहचान लो, उनका ट्रीटमेंट कर लो। यही पावर लाने के लिए प्राणायाम का ये सेशन किया जाता है। थैंक यू।